ایک کلمے کے بارے میں ہم سنیں. تو پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے معافی کا کلمہ. اس کے لیے حوالہ ہے لوکا 23 باب اس کی 34 آیت. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اس کلمے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی خدا کی خادمہ روبینہ کو کہ وہ آئیں اور ہم سب کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کریں. ہاللویا ہاللویا. سب کو میری طرف سے سلام. خداوند کو بہت بہت برکت دے. اس کے بعد میں خداوند کا بہت شکر ادا کرتی جس نے مجھے موقع دیا پہلے کلمے کا. خداوند کا بہت بہت شکر ادا کر. جس کے بعد میں بڑی نسرین کا اس کے بچوں کا اور اس کے ساتھی کا. بڑی نسرین آپ کو بہت بہت خداوند برکت دے. اپنے نام اور جلال کے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال اور خرچ کرے. آمین. میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل کے ساتھ گراوٹ کریں گے. جس کو بھی یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہاللویا. ہاللویا. یسوع نے کیا کہا؟ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. آمین. آمین. یسوع جب صلیب پر تھے تو یسوع نے یہی پیغام دی یہی اپیل کر دی. یسوع نے اپنے باپ کے ساتھ شفاعت کی. کہا اے باپ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اس کو یسوع کو جب صلیب دی گئی پہلے اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا گیا. ہاتھوں پاؤں پہ کیل لگوائے اور پاؤں خدا نے اس کو پاؤں جب صلیب پر چڑھا تھا پہلے چھ پیشن گوئی کی گئی. 3 میں مذہبی میں وہ سیاست میں گیا اور 3 میں مذہبی میں گیا. 6 پیشن گوئی اس کی گئی اور پوری رات اس کی کتابیں کھل چکی تھی. کوئی اس کا ثبوت نہ ملا بلکہ وہ پاک صاف تھا بے گناہ تھا. وہ لوگوں کے لیے گناہ معاف کرنے آیا تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا میں گناہ گار ہوں. ہاللویا. ہاللویا. بے شک وہ جب اس کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے گالی گلوچ دے رہے تھے اس نے بدی کے بدلے بدی نکلی اور اس نے گالی کے بدلے گالی نہ دی. اتنی اس کو گالی دے رہے تھے. مسٹری میں پڑھتے ہیں ہم سن نہیں سکتے پھر بھی وہ اس کا منہ بند تھا. وہ خاموش رہا تھا. وہ برداشت کرتا جا رہا تھا. اس نے کہہ دیا اس نے برداشت ہمیں سکھایا. جب ہماری زندگی میں برداشت ہوگا تو ہم بھی کہہ سکیں بہن اے بھائی میں تجھے معاف کرتی ہوں اور معاف کرتا ہوں. اس نے ہمیں یہ سکھا دیا تھا کیونکہ اس نے ہماری خاطر کوڑے لگوا دیے تھے. وہ لہو لہان ہو چکا تھا. آج ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ آج اس کو کیوں نہیں پہچانتے؟ آج اس کی پہچان میں کیوں نہیں بڑھتے جا رہے؟ آج ہمیں کلام تو دے رہے ہیں خدمتیں تو کر رہے ہیں عبادت تو کر رہے ہیں بلکہ ہمارا بھائی وہاں پر ناراض اس کو کیوں نہیں معاف کرتے جا رہے؟ بہن ہماری ناراض اس کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہمارے دل میں ایسی باتیں ہونی چاہیے. نفرتیں دور کر دو, بغض دور کر دو, کینہ دور کر دو, حسد دور کر دو. تب جا کے آپ کی عبادتیں پرفضل ہو جائیں گی. آمین. جب وہ لہو لہان تھا یہ کوڑے لگوائے گئے تھے سپاہیوں نے. جب وہ کوڑے لگوائے اس کے جسمانی جسم تھا وہ انسان بن کے دنیا میں آیا تھا. وہ جب باغ عدن میں ایسے انسان اور آدم کے ساتھ جدائی خدا کے ساتھ جدائی ہوئی تھی جب وہ دنیا میں آیا ساری جدائی اس نے ختم کر دی تھی کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ تھا. وہ سب کچھ کرنے میں قدرت رکھتا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اسٹیفن کی زندگی میں ذرا غور کریں. وہ شاگردوں میں ایک شاگرد وہ ڈکن تھا. وہ ڈکن تھا جب وہ اس کو پتھر مارتے تھے وہ لہو لہان ہو چکا تھا. تب اس نے جا کے گھٹنے ٹیک کے بڑی آواز سے کہہ دیا اے خدا باپ انہیں ان کے گناہ نہیں لگانا. اس نے
वो क्योंकि वो मसीह में सो चुका था, क्योंकि वो खुदा को देखता था, उसकी मानद वो बन चुका था, खुदा के नमूने को उसने पेश किया था। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु को जब कोड़े लगा रहे थे, हाथों पाँव पे जब कील लगवाए, बड़ी सलीब उठाई, एक हफ्ता पहले उन लोगों ने ओशियाना के नारे मारे, जब इस्तकबाल करते आ रहे थे, जब इस्लाम में जब वो दाखिल किया गया और खजूरों की डालियां उसकी राह पे बिछा दी, उसकी राह पे बचाई, औरतों ने चादरें बिछा दी, ओशियाना के नारे मारे, तारीफो भर्रा की, तारीफो भर्रा की वो करती जा रही थी। आज वो दुश्मन बन चुके थे। फरीसी काहिन, वो जो लोग थे बाकी फरीसी, उसकी ताक में लगे रहते थे, उसको पकड़ाएं, उसको आजमाते भी रहते थे। मगर हमारा यीशु तो पाक था, हमारा यीशु थे जिंदगी में ऐसे गुनाह नहीं, वो दूसरों के गुनाह माफ करने की वो कुदरत रखता था। जब वो गुनाहगार औरत जब उसके पास आई, वैन के वक्त वो पकड़ी गई, जब यीशु के पास जब आई, उसने कह दिया जिसने नहीं पत्थर मारे उसको पत्थर मारे। सबके गुनाह वो जमीन पे लिखता गया, कोई उनके गुनाह वो देखते देखते वो चले गए वो शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि वो खुदावा हमारा यीशु नासी ऐसा है, सबके गुनाह को माफ करता है। वो कहता कहाँ चले गए, छोटे बड़े सब चले गए, क्योंकि हम पत्थर जब हमारी जिंदगी में ऐसे गुनाह होते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाएं, क्योंकि हमारी जिंदगी में भी ऐसी कमियां हैं। खुदा हमें देखता भी है हमारी जिंदगी में, ऐसा वो कहता है फिर गुनाह नहीं करना। जब स्लीप पर थे, हमारी बोझ को उसने उठा लिया, हमारी परेशानियों को उठा लिया, हमारी मुश्किलातों को उठा लिया, हमारी ऐसी परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलातें, बीमारियां, तंग दस्तियां उसने अपने ऊपर उठा लिया। फिर भी वो कह रहा था बड़ी बुलंदी के साथ, ए बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो शफायत भी कर रहा था, वो शिफा भी दे रहा था। साया नबी की किताब में पहले पेशन गोइयां उसकी हो चुकी थी, पहले पेशन गोइयां उसकी हो चुकी थी। वो पहले पूरब पश्चिम से दूर जैसी भी बदकारियां हो जाती हैं दूर, मैं तुम्हारी सारी बदकारियों को पाक साफ करने की कुदरत रखता हूँ, आमीन। ऐसे बताया गया है जब पतरस खुदा का शागिर्द यीशु के पास गया, उसने क्या कहा था? उसने कहा मेरा भाई नाराज है, मैं कितनी दफा उसको माफ करूं? 7 मरतबा। यीशु ने क्या जवाब दिया? 7 से 70। तो कितने दिन होते हैं मुझे बताओ, इसको जमा करो, आप बता दो कितने दिन होते हैं? 7 से 70 दफा, 490। क्योंकि दिन में आप बार बार अपने भाई को माफ करो। हम एक दफा भी क्यों नहीं माफ करते? उसने यीशु ने ये भी कह दिया था सूरज डूबने से पहले अपने भाई की नाराजगी को दूर कर, अपने बहन की नाराजगी को दूर कर, अपने रिश्तेदारों की नाराजगी को दूर कर। उसने कह दिया अपने मानित अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत कर। हम कितनी मोहब्बतें कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं। वो जैसे टीम में भी, कलीसिया में बार बार ये नजात का पैगाम, ये माफी का पैगाम, ये मोहब्बत का साथ कलमे भी दे रहे हैं, अमल है या नहीं? उसने तो अमली तौर पे भी सबको माफ कर दिया। उसने कहा जब अपने मस्बा पे शुक्रगुजारियां लेकर आता है, जा तेरा भाई नाराज है, पहले उसके पास जा, तेरी दह यकियां, तेरी शुक्रगुजारियां, तेरी नजराने, ये तेरा सब कुछ मैं कबूल कर लूंगा। पहले अपने भाई के पास जा, मैं सब कुछ कर दूंगा। पहले ये बार बार अमल तो करें। हमारी जिंदगी में ये अमल करना मुश्किल है, माफी का कलमा बहुत मुश्किल है। हम बार बार जाना सी माफ कर देंगे, सांसा दा पता है, दिल की धड़कना दा पता है कितों खत्म हो जान, कितों खत्म हो जान हमारी सांसें, हमारी दिल की धड़कनें कब खत्म हो जाएंगी? बहू सास के साथ नाराज है, जुड़ जाओ। ये सासों का पता नहीं, भाई बहन के साथ नाराज तो जुड़ जाओ, रिश्तेदारों में फैमिली को नाराज जुड़ जाओ, बात बरकत होंगे। जब हम माफ करेंगे आसमान के दरीचे भी खुलना शुरू हो जाएंगे। जब हम माफ करेंगे बच्चों में बहाली आना शुरू हो जाएगी। जब हम माफ करेंगे बेलादों को लाद खुदा देने की कुदरत रखेगा। जब हम माफ करेंगे सारी लड़ाइयाँ झगड़े दूर हो जाएंगे, आमीन। पीछे हम देखते हैं दूसरा कलमा नजात का। डाकू था, वो बदकार था, तो क्या कहता है?
तो जब अपनी वाशी में आएगा तो मुझे याद करना। तो उसने क्या क्या है, इतने खूबसूरत अल्फाज में बोला, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन, हालेलुया। जब उसने कह दिया है आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो बंद दरवाजे भी फिरदौस के खुलना शुरू हो जाएंगे। जब आप तौबा करेंगे, खुदा के आगे झुकेंगे, घुटनों के बल कहेंगे, ऐ यीशु मैं अपनी बहन के साथ नाराज हूं, मुझे माफ कर, वो नाराजी मुझे माफ कर। देख लेना आपके रोटी पानी पे खुदा बरकत देगा, जुए बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे, रास्ते भी हमवार होना शुरू हो जाएंगे। यीशु जब सलीब पे था वो शफायत कर रहा था। जब उनको बताना मैं चाहती हूँ, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब अपने दुश्मन के साथ नाराज किए तो क्या करोगे? आप बताओ, जब दुश्मन के साथ हमारे साथ दुश्मन के साथ हमारी नाराज, हम कैसी दुआ करें? सताने वाले के साथ हम कैसी दुआ, बरकत की दुआ मांगे, दुश्मनों की दुआ मांगे, कहीं है खुदावन हमें माफ कर, जो मुझसे कमी हो चुकी है, जो मुझसे ऐसी मैंने बात करती है, अपनी जुबान से कोई मैंने बात कर दी, उसको गुस्सा आया, मुझे माफ कर। वो आज ही हमें माफ करने की कुदरत रखता है। उसने तो हमारे बोझ को उठा लिया। उसे रसूल पौलुस क्या कहता है, जैसे मैं मसीह की इमानत हूँ तुम भी उसकी इमानत बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी इमानत है या नहीं? कोई है? कोई भी नहीं, कोई नहीं उसकी इमानत। उसकी इमानत जब बनेगी, जैसे बादशाह नबी रसूल सब मार खाते थे, उसकी खिदमत उनकी पुरफजल थी। हमारी खिदमत भी ऐसी पुरफजल होनी चाहिए। उसका फजल ही हमारे लिए काफी है, वो फजल से हमें आबाद करेगा। घराने में क्यों बर्बादियां हो रही है, लड़ाई झगड़े मियां बीवी में क्यों हो रहे हैं? माफ नहीं कर रहे। हमारी जिंदगी में माफ करना जरूर है। खताएं भी कर लो, अपनी जुबान से बोल दो यीशु को, यीशु तूने तो माफ कर दिया सबको, तो हम तो तेरी मानत है ही नहीं है, हम तो उसकी मानत बन जाए। मियाँ बीवी में जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो नहीं है यीशु, आपस में ये सुना सलामती की जिंदगी में आना शुरू हो जाए, ईमानदारों की जिंदगी में आए, खादमों की जिंदगी में आ जाए, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये माफी का कलमा बहुत मुश्किल है। उसने तो कह दिया, अलमी तौर पे उसने सबको माफ कर दिया था, उसने हमारे बोझ को उठा दिया, उसने हमारे सारे गुनाह को उठा दिया। हम उसके वो सलीब पर मुआ भी गया, वो मर भी गया, वो दफन पे भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी उसकी कब्र खाली है, आज भी उसकी सलीब खाली है। जो हमारे दरमियान महसूस करते यीशु यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए झील में लिखा है, जो आसमानी बाप जब दूसरों के कसूर माफ करोगे, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ कर देगा। कहता है दिल से माफ करो, असी कहने नहीं ऐसा माफ कर देता है, ऐसा हाँ माफ कर। माफी बहुत मैं फिर कहती मुश्किल है। दिल से माफ करो, दिल से माफ करो। वो दिल और गुर्दों को जानने वाला हमारा यीशु है, उसकी आंखें सारी तरफ लगी हुई है। वो कहता मैं दूर से तेरे ख्यालात को जान लेता, तू कैसा मेहरबान, तू कैसा मेरी तरफ आ जा, तू मुझे बोल। जैसे स्टीफनस ने बोल दिया, वो लहूलुहान था, उसको पत्थर भी मारे जा रहे थे, वो घुटनों के बल झुक गया, बड़ी आवाज से उसने कह दिया, ऐ यीशु इनके गुनाह के जिम्मे ना लगा। वो मसीह में सो गया। जब उसके हम पैरोकार बनेंगे ना, पैरवाई करेंगे ना, फिर जाके हमारी खिदमत हम कहते हैं खुदावंदा क्यों ऐसे काम हो रहे हैं, कैसे ऐसे हो रहे हैं काम। मेरा यीशु हमारी आवाजों को सुनता है। मेरे यीशु ने जब कांटों का ताज सर पे बनाया, एक हम हिल गया था, उसको बाला जब लगाया गया, उसके असली पे खून और पानी बहना शुरू हो चुका था। जब उसको लान तान कर उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके बालों को खींचा गया, उसके मुंह पे थूका गया, अंदर तो बता, तू स्लीप उतर जा, तू खुदा का बेटा है। वो कहता तू खुद ही कह रहे मैं खुदा का बेटा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता खुद ही कह रहे अपनी जबान से। जैसे पहनते पड़ोस के पास जब गए, वो कहता किसको छोड़ूं,
यहूदी फकीर फरीसी कहने लगे बरपा को छोड़ दो, सलीब यीशु को दे दो, मसलूब करो, मसलूब करो, मसलूब करो। उसने अपने हाथ धो लिए, वो बरी हो चुका था। क्या हुआ? वो बरी हो चुका था। कहता मैंने इसके गुनाह नहीं मैंने देखे, ये तो है ही रास्तबाज है। हालेलुया। आज हमें ऐसे घुटनों के बल झुक जाए, ये हमारी अंदर से कमियां हैं। ये साल हमारी तब्दीली का, ये साल हमारी मोजज़ात का, ये साल हमारे इकट्ठा होने का है। भाई भाई दूर हो चुके मिल जाए, माफ कर एक दूसरे से, हक करें एक दूसरों को। बहन जो बहनें हैं मिल जाए, हक करें। भाई अपनी बहन को प्यार करे, भाई बहन अपने भाई के साथ मिल जाए। कोई भी ऐसे बातें हैं निकाल दो अपने दिल से, एक दूसरों से प्यार करो, मोहब्बत की बातें निकलो करो। पहले जमाने में लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतनी मोहब्बत होती थी। एक ऐसे दस्तरखान में जाता था तो रोटी खाते थे, एक दूसरे के साथ मिलते भी थे। तो चूल्हा होता सी, मां सानू रोटी दे तो आंधी उन्हें रोटी तो पका के तो वो तो जमीन पे बैठते थे। तो कितनी मोहब्बत, माफी, मोहब्बत, बर्दाश्त, तीनों मिल जाएंगे ना, सारे काम पूरे हो जाएंगे। काम में ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे हमारी जिंदगियों में। ये काम हमारी जिंदगियों में हमेशा, आपकी जिंदगी में फरदौस भी खुल जाएगा, आसमान के दरीजे भी खुल जाएंगे, आसमान की बाशी भी खुल जाएंगे। तब जाके हम यीशु के पैरोकार बन जाएंगे। और इसके सलीब, वो कहता है बार बार अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा, मेरे पीछे चल। कोई भी आपकी जिंदगी में ऐसे काम है, बोल दो मेरे अंदर से यीशु निकाल, मैं खुद ही कर रही हूँ, कुछ भी कर रही, मैं तेरी सलीब उठा रही हूँ। बार बार पौलुस रसूल कह रहा है, तो बार बार यीशु का सलीब क्यों दे रहे, उसको जलील करते जा रहे हैं। आमीन। क्यों हम ऐसे करते जा रहे हैं? वो ऐसे सलीब पर था, ऊंचाई पे था, वो कह रहा था बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं जानती हूँ, मैं आपको बताना, जब इसे रोटी पकाते हैं ना, तो हमारे हाथ जब जलते हैं, वो भी कांटा चुभ जाता है, कितनी दर्द होती है। तो वो यीशु हमेशा हमारी दुआ को जुड़ा दे, हम उसके पैरोकार बने और मसीह के पीछे चले, और यीशु आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा की खादमा के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि खुदा जो मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। हमें खुदा के नक्शे कदम पर चलना है और अपने उन लोगों को, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को मुआफ करना है जिस तरह खुदा मुआफ करता था। हमें खुदा के नक्शे कदम पर चलना है। सना से दरख्वास्त है, एक आयत सलीबी कलमात की गाए दुआया कोर्स।